الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.260 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 260 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 237۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِن روٹ ورڈ الف نون سے مانے اور اگر، اینڈ اف طلقتموہن تو لام قاف سے مانے تم انہیں طلاق دو، یو ڈائیورس دیم، من میم نون سے مانے سے، فرام قبل قاف با لام سے مانے پہلے، بیفور ان الف نون سے مانے کے، دیٹ تمسوہن میم سین سین سے مانے انہیں ہاتھ لگاؤ، یو ہیو ٹچ دیم، وقد قاف دال سے مانے اور کر چکے ہو، وائل آلریڈی، فرض تم فا وا زواد سے مانے تم مقرر، یو اسپیسیفائڈ، لہن لام سے مانے ان کے لیے، فار دیم، فریضتاً فا وا زواد سے مانے مہر، این obligation اشارہ ڈوور کی طرف ہے، فنصف نون سواد فا سے مانے تو نصف، دین ہاف ما میم الف سے مانے جو، واٹ فرض تم فا وا زواد سے مانے تم نے مقرر کیا، یو ہیو اسپیسیفائڈ، الا الف لام لام الف سے مانے سوائے، انلیس ان الف نون سے مانے یہ کہ، دیٹ یعفونا عین فا واو سے مانے وہ معاف کر دیں، دے فورگو، او الف واو سے مانے یا اور، یعفوا عین فا واو سے مانے معاف کر دے، فورگوز، الذی الف لام لام دال یا سے مانے وہ جو، the one بیدیہی یا دال یا سے ہے مانے اس کے ہاتھ میں، in whose hands، عقدۃ عین قاف دال سے مانے گرا، not ان نکاحی نون کاف ہا سے مانے نکاح، دی میرج، و ان الف نون سے مانے اور اگر، اینڈ اف تعفو عین فا واو سے مانے تم معاف کر دو، یو فوگو، اقربو قاف وا با سے مانے زیادہ قریب، نیئرر، للتقوی واو قاف یا سے مانے پرہیزگاری کے، ٹو دا رائٹیسنس، ولا لام الف سے مانے اور نہ، اینڈ ڈو ناٹ، تنسو نون سین یا سے مانے بھولو، فورگیٹ، الفضل فا زواد لام سے مانے احسان کرنا، دی گریشیسنس، بینکم با یا نون سے مانے باہم، among you، ان الف نون نون سے مانے بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ بما با میم الف سے مانے اس سے جو، of what تعملون عین میم لام سے مانے تم کرتے ہو، you do، بصیرun با صاد را سے مانے دیکھنے والا ہے، اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوهن اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا، وقد فرضتم لهن فریضہ اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا، الا ان یعفونا سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی یا وہ معاف کر دے، بیدیہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے، وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور باہم احسان کرنا نہ بھولو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے، اور باہم احسان کرنا نہ بھولو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔
फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वइन तल्लक़्तुमुहुन्ना and if you divorce them min qabli an tamassuhunna before you have touched them waqad farastum lahunna fariza while you have already specified dower for them farisfu ma farastum then give half of what you specified illa an ya'funa unless they forgo it aw ya'fu allazi or forgoes the one biyadihi uqdatun nikah in whose hand is not of the marriage وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى then if you forgo that it is nearer to the righteousness وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ and do not forget the graciousness among you إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ indeed Allah sees what all you do. Complete translation देखें। And if you divorce them before you have touched them while you have already specified dower for them then give half of what you specified unless they forgo it or forgoes the one in whose hand is not of the marriage. Then if you forgo, then it is nearer to the righteousness and do not forget the graciousness among you. Indeed Allah sees what all you do. करंट आयत को हम रिवाइज करते हैं इन कंटिन्यूटी सूरह बकरा के आयत नंबर 236 के साथ ताकि हम इनके बीच का सिलसिला समझ सकें और तलाक के ये 4 उसूल ठीक से समझ पाएं जो इन 2 आयतों में स्पेसिफाइड हैं। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम तलाक दो जबकि तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया या उनके लिए महर ना मुकर्रर किया हो और उन्हें खर्च दो खुशहाल पर उसकी हैसियत के मुताबिक और तंगदस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक खर्च दस्तूर के मुताबिक देना नेकोकारों पर लाजिम है। और अगर तुम उन्हें तलाक दो इससे पहले कि तुमने उन्हें हाथ लगाया और उनके लिए तुम महर मुकर्रर कर चुके हो तो उसका निस्फ दे दो जो तुमने मुकर्रर किया सिवाय इसके कि वो माफ कर दें या वो माफ कर दे जिसके हाथ में उक़्दे निकाह है और अगर तुम माफ कर दो तो ये परहेजगारी के करीब तर है और बाहम एहसान करना ना भूलो बेशक जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है। तफसीर आयात देखें यानी इन 2 आयत को इन कंटिन्यूटी देखते हैं तो 4 उसूल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन आयत की इंफॉर्मेशन से। इन 2 आयत यानी सूरह बकरा आयत नंबर 236 और 237 में तलाक के 4 उसूल सिखाए गए हैं। सबसे पहला उसूल है महर मुअय्यन हो यानी अगर महर को मुकर्रर कर दिया गया हो और खिलवत सहिया भी हो तो पूरा महर देना होगा यानी शौहर ने अगर बीवी से सोहबत की हो तो पूरा महर देना पड़ेगा। दूसरा उसूल देखें महर मुअय्यन हो और औरत को क़ब्ल खिलवत सहिया तलाक दे दी जाए तो निस्फ महर वाजिबुल अदा है। तीसरा उसूल है महर मुअय्यन ना हो और खिलवत सहिया हो जाए तो महरुल मिसल देना पड़ेगा यानी उस औरत के खानदान में उमूमन दूसरी औरतों का जितना महर बांधा जाता है इतना ही वाजिबुल अदा होगा। चौथा उसूल है न महर मुअय्यन हो और न खिलवत सहिया हो तो ऐसी सूरत में औरत को हस्ब इस्तिताअत कुछ न कुछ माल व मता देना चाहिए। तो इन चारों उसूल में दूसरे उसूल पर इस आयत में ज्यादा फोकस किया गया है यानी महर तो मुअय्यन हो गया है फिक्स हो गया है और औरत को क़ब्ल खिलवत सहिया तलाक अगर दे दी जाए तो निस्फ महर शौहर पर वाजिब होगा यानी उसको अदा करना होगा। आयत के इस पर्टिकुलर हिस्से पर फोकस करते हैं और याफ़ु लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह या वो माफ कर दे जिसके हाथ में उक़्दे निकाह है यानी महर चूंकि शौहर को हाफ देना है ऐसे केस में तो ये मुमकिन है कि बीवी वो हाफ भी माफ कर दे जो उसको लेना था या ऐसा भी मुमकिन है कि शौहर जो रिमेनिंग हाफ उसके लिए एग्जेम्प्टेड है वो भी अदा कर दे यानी हाफ अदा करने के बजाय वो कंप्लीट अदा कर दे ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर इख्तिलाफ इस बात का है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसके हाथ में उक़्दे निकाह है वो भी माफ कर सकता है तो उक़्दे निकाह किसके हाथ में है। एक हदीस में है कि इससे मुराद खाविंद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल हुआ कि इससे मुराद क्या औरत क्या औलिया है। फरमाया नहीं बल्कि उससे मुराद खाविंद है और भी बहुत से मुफस्सिरीन से यही मरवी है। इमाम शाफ़ई का जदीद कौल भी यही है, इमाम अबू हनीफा वगैरह का भी यही मजहब है इसलिए कि हकीकतन निकाह को बाकी रखना तोड़ देना वगैरह ये सब खाविंद के ही इख्तियार में है। यानी एक जमात का ये कौल है कि दरअसल ये इशारा खाविंद की तरफ है क्योंकि खाविंद ही के बस की बात है कि चाहे तो निकाह कायम रखे चाहे तो खत्म कर दे। और जिस तरह वली को उसकी तरफ से जिसका वली है उसके माल का दे देना जायज नहीं, इसी तरह उसके महर के माफ कर देने का भी इख्तियार नहीं। यानी जो दूसरी जमात है उसका ख्याल है कि यहाँ पर इशारा औरत के वली की तरफ है, लेकिन पहली जमात का कहना है कि ये इशारा शौहर की तरफ है। दूसरा कौल इस बारे में यह है कि इससे मुराद औरत के बाप भाई और वो लोग हैं जिनकी इजाजत के बगैर औरत निकाह नहीं कर सकती। यानी दूसरी जमात का यह कौल है कि उक़्दे निकाह दरअसल औरत के वली के हाथ में होता है, यानी वो शख्स जिसकी इजाजत के बगैर औरत निकाह ही नहीं कर सकती।
ابن अब्बास वगैरह का भी यही कौल है। इमाम मालिक का और इमाम शाफी का कौल कदीम भी यही है। इसकी दलील यह है कि वली ने ही इस हक का हकदार उसे किया था तो इसमें तसर्रुफ करने का भी उसे इख्तियार है, वो और माल में हेर फेर करने का इख्तियार ना हो। क्योंकि वली ने ही निकाह मुकर्रर किया, वली की तरफ से ही महर मुकर्रर हुआ, इसीलिए वली को यह इख्तियार होगा। दूसरी जमात का ये कहना है। इक्रिमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने माफ कर देने की रुख्सत औरत को दी, और अगर वो बखील और तंग दिली करे तो इसका वली भी माफ कर सकता है। आयत के इस हिस्से पर तवज्जो करें। व अन ताफू अक़रबू लित्तक़वा, और अगर तुम माफ कर दो तो ये परहेजगारी के करीब तर है। अगर एक दूसरे का हक वो माफ कर दें तो माफ करना ही तक़वे से ज्यादा करीब है। इससे मुराद मर्द और औरत दोनों ही हैं, यानी दोनों में से अच्छा वही है जो अपना हक छोड़ दे। यानी औरत या तो अपना आधा हिस्सा भी अपने खाविंद को माफ कर दे, या खाविंद ही से बजाय आधे के पूरा महर दे दे। यानी ये रहम दिली औरत की तरफ से भी हो सकती है और आदमी की तरफ से भी हो सकती है। औरत चाहे तो जो हाफ महर पर उसका हक था वो भी माफ कर सकती है, या अगर आदमी चाहे तो आधा महर देने के बजाय पूरा महर भी दे सकता है। अल्लाह ताला मजीद इस आयत में फरमाते हैं, वला तनसवुल फज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, और बाहम एहसान करना ना भूलो, बेशक जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है। यानी मामला तलाक का है, सेपरेशन का है, एक बिटर सिचुएशन का है, तो ऐसी बिटर सिचुएशन में उमन एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती है, तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि उनके बीच नफरत पैदा हो, कड़वाहट हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे हालात में भी एक दूसरे पर मुसलमानों को, मोमिन बंदों को, खास तौर पे ये ज़ौजैन को जो जुदा हो रहे हैं, डिपार्ट हो रहे हैं, एहसान करना चाहिए। इब्न मरदुया की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक काट खाने वाला जमाना आएगा, मोमिन भी अपने हाथों की चीज को दांतों से पकड़ लेगा और फजीलत और वह बुजुर्गी को भूल जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला का फरमान है, अपने आपस के फजल को ना भूलो। बुरे हैं वो लोग जो एक मुसलमान की बेकसी और तंगदस्ती के वक्त उससे सस्ते दामों उसकी चीज खरीदते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बई से मना फरमा दिया है। इस हदीस का कंक्लूजन यह है कि अल्लाह ताला मोमिन बंदों को आपस में एक दूसरे पर फजल करने का हुक्म देते हैं। अगर तेरे पास भलाई हो तो अपने भाई को भी वो भलाई पहुंचा, उसकी हलाकत में हिस्सा ना ले। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न उसे रंज और गम पहुंचे, न उसे भलाइयों से महरूम रखे। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है, इस पर तुम्हारे काम और तुम्हारे हाल बिल्कुल रोशन है, और अनकरीब वो हर एक आमिल को उसके अमल का बदला देगा। यानी अगर मोमिन बंदे एक दूसरे पर एहसान करे, एक दूसरे पर फजल करे, तो उनके आमाल से, उनकी नेकियों से अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला बाखबर है, बेखबर नहीं है, और जरूर उनके नेक काम का, उनके फजल का, उनके फजलो करम का जो उन्होंने दूसरों पर किया है अल्लाह ताला अजर देगा। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। इस आयत में हुक्म है कि अगर शौहर महर मुकर्रर करने के बाद बीवी से सोबत किए बगैर उसे तलाक देता है तो उसको आधा महर देना होगा। अगर वो पूरा महर देता है तो ये नेकी है और तक़वे में शुमार होगी। इसी तरह अगर औरत अपना आधा महर भी माफ कर देती है तो ये उसकी नेकी है और तक़वे में शुमार होगी। अल्लाह ताला ज़ौजैन को आपस में एक दूसरे पर फजल करने का हुक्म देता है, और बेशक अल्लाह उनके हर अमल से वाकिफ है। इसी बात को अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, वला तनसवुल फज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, और बाहम एहसान करना ना भूलो, बेशक जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।